حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ GHMC وارڈز کی از سر نو حد بندی یعنی ڈی لمیٹیشن پر ہائی کورٹ کی مداخلت سے انکار، ڈویژن کی تعداد 300 کرنے کے فیصلے کو عدالت کی منظوری۔ شہر میں ریئل اسٹیٹ تجارت میں تیزی، ماہ نومبر کے دوران مکانات کے رجسٹریشن میں ہوا 25% اضافہ، 4900 کروڑ مالیاتی جائیدادوں کا ہوا رجسٹریشن۔ BRS میں واپسی کا سوال ہی نہیں، MLC کویتا نے کیا واضح، 2029 کے اسمبلی انتخابات میں ضرور مقابلہ کرنے کا اعلان، کہا جدوجہد رہے گی جاری۔ مجلس کی مؤثر نمائندگی اجمیر شریف عرس کے لیے حیدرآباد سے خصوصی ٹرینیں، MLA ماجد حسین نے عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی ٹرینیں کو دکھائی جھنڈی، کیا روانہ۔ بالاپور میں پولیس کا چبوترا مشن تیز، رات بھر چھاپے اور سخت نگرانی، غیر مجاز سرگرمیوں کے خلاف کارروائی، امن و امان کے لیے بائک پیٹرولنگ، گلی گلی پولیس کی موجودگی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے ڈویژن کی از سر نو حد بندی کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس کے دوران دلائل سننے کے بعد عدالت نے اس معاملے میں مداخلت سے صاف انکار کر دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت نے GHMC میں ڈویژنز کی تعداد 150 سے بڑھا کر 300 کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر اعتراض کرتے ہوئے عرضی گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نئی وارڈ بندی سینٹر فار گڈ گورننس کی رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے، مگر یہ رپورٹ عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی اور نہ ہی اعتراضات داخل کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا گیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ڈی لمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن مکمل طور پر قانون کے دائرے میں جاری کیا گیا ہے، تمام تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اور اب تک موصول ہونے والے تقریباً 3100 اعتراضات پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے بعد عدالت نے حکومت کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے عرضی میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ ماہ نومبر کے دوران شہر حیدرآباد میں مکانات کے رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں ریئل اسٹیٹ کی تجارت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی ہے اور خرید و فروخت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہ نومبر میں شہر میں مکانات کے رجسٹریشن میں 25% کا اضافہ ہوا ہے۔ نومبر کے دوران جملہ 6923 مکانات کا رجسٹریشن کیا گیا، جن کی مالیت جملہ 4900 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ادارے کی رپورٹ میں یہ بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہر میں بڑی جائیدادوں کے لیے عوام کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگ بڑی جائیدادیں خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جن جائیدادوں کا رجسٹریشن کیا گیا ہے، ان میں 17% جائیدادیں 2000 اسکوائر فٹ سے زائد کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماہ نومبر کے دوران شہر میں رہائشی جائیدادوں کے رجسٹریشن میں تیز رفتار اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں مالیہ وصولی میں بھی بہتری آئی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر اے ریونت ریڈی نے گرام پنچایت کے منتخب عوامی نمائندوں کے فرائض اور ذمہ داریوں پر مشتمل ایک کتابچے کی رسم اجرائی انجام دی۔ اس کتابچے کو پنچایتی پرجا پرادھیکار دیپیکا کا نام دیا گیا ہے۔ اس پوسٹر میں گرام پنچایت کے عوامی نمائندوں کی ذمہ داریوں پر مکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ تلنگانہ دیہی ترقیاتی کے کارپوریشن نے پنچایت راج ایکٹ کے مطابق یہ کتابچہ تیار کیا ہے، جو 292 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء کیپٹن اتم کمار ریڈی، سیتکا، جوپلی کرشنا راؤ، کونڈا سوریکھا، پونگلیٹی سرینیواس ریڈی اور محمد اظہر الدین بھی موجود تھے۔ حکومت کی جانب سے یہ مکمل تفصیلات گرام پنچایتی عوامی نمائندوں کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان میں اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل رہیں۔
तेलंगाना के वजीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू ने साबिक CM KCR के हालिया बयानात पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जब मुल्क व बैरून मुल्क से सनती सरमायाकार तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे वक्त में रियासत में सरमायाकारी और नौजवानों को रोजगार न मिलने की बात करना निहायत अफसोसनाक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सनती वेतन को बदल करने वाले KCR के तबसरों की सख्त मजम्मत की जाती है। श्रीधर बाबू ने निशानदेही की कि ग्लोबल समिट के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से जायद के MOUs तय पाए, जो रियासत की तरक्की और बढ़ते हुए एतमाद का सबूत हैं, मगर यही कामयाबी KCR को हजम नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना के तहत प्रजा हुकूमत तेलंगाना को तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन के साथ तरक्की की राह पर गामजन रखेगी और सरमायाकारी व रोजगार के मौके में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ఒకవైపు దేశం మొత్తం గాని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు చూస్తా ఉంటే, మరొక వైపు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు రావద్దు, పరిశ్రమలు అసలే వద్దు, నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగాలు రావద్దని పూర్తి స్థాయిలో BRS నిన్ననే మరొకసారి TRS పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం ఆలోచన విధానాన్ని మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు చెప్పకనే చెప్పారు. వారి మాటల్లో అదే ధ్వనిస్తా ఉంది. గ్లోబల్ సమిట్ కు సంబంధించి 5 లక్షల కోట్ల పైమించి పెట్టుబడులు MOUలు జరిగితే, ఆ MOUలను అంటే మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సంబంధించి గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలు చేసుకున్న ఈ MOU సంబంధించిన అంశాన్ని చాలా తేలికగా కొట్టుపడేసి పారిశ్రామికవేత్తలకు పెట్టుబడులు పెట్టాలని వారిని నిరుత్సాహపరిచే విధంగా వారి మాటలను మేము ఖచ్చితంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరుగుతుందంటే వారికున్న నిజంగానే కేంద్ర మంత్రిగా చేసినారు, 2 మార్లు రాష్ట్ర మంత్రిగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రిగా వారు ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఇప్పుడు చేస్తా ఉన్న అభివృద్ధికి దోహదపడి వారి మంచి సూచనలు, సలహాలు, దాంతో పాటు ఈరోజు రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి రాష్ట్రాన్ని ఎందుకు కోరుకున్నాం, ప్రధానంగా యువతకు సంబంధించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని ఒక ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉన్నాడు. పరిశ్రమలు ఖచ్చితంగా రావాల్సింది. तेलंगाना में रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन और सर्वे खिदमात को अब एक ही प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाएगा और ये सब भू भारती पोर्टल के तहत काम करेंगे ताकि आवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जा सके और तमाम काम शफाफियत के साथ अंजाम दिए जा सकेंगे। रियासती वजीर शहरी व हाउसिंग मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने CCLA ऑफिस का अचानक मुआयना किया और तफसीलात से वाकफियत हासिल की। उन्होंने बादजान जायज़े इजलास भी मुनक़्क़द किया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरे खिदमात को अब एक ही प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाएगा और इन्हें भू भारती पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब अपग्रेड सिस्टम को माह जनवरी से कारगर बना देने इक़दाम किए जा रहे हैं। P श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने दफातर को कॉरपोरेट मेयारात के मुताबिक असरी बनाएं और काम काज में बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम खिदमात का मुश्तरका पोर्टल किसानों और शहरियों को मुकम्मल अराजी इत्तलात हासिल करने में माविन होगा और सिर्फ एक क्लिक पर ये इत्तलात इन्हें दस्तयाब हो जाएंगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने नलगुंडा जिले में हालिया इंतखाबात में कामयाब सरपंचों, अब सरपंचों और वार्ड मेंबरान को तहनीत पेश करते हुए कहा कि पार्टी ने कोडंगल, शादनगर, खानापुर, भोनगिरी, आलेर, सिरसिला, बिमलावाड़ा और टांडूर समेत मुख्तलिफ असम्बली हलकों में जीत दर्ज की है, जो अवाम के एतमाद का सबूत है। इस मौके पर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बराह रास्त चैलेंज देते हुए मुतालबा किया कि अगर हुकूमत को अपनी दयानतदारी और किसानों के लिए किए गए इक़दामात पर यकीन है तो फौरन कोऑपरेटिव इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कितने ही मुकदमात कायम किए जाएं या जेल भेजा जाए, BRS की जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कांग्रेस हुकूमत अपने 420 वादों पर अमल नहीं करती और महबूब नगर व नलगुंडा के किसानों को कृष्णा के पानी में मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल जाता। KTR ने उजरा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी पर तंज कसते हुए कहा कि लेक्स और पसे पर्दा सियासत के बजाय अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने आकर बात की जाए। साथ ही ऐलान किया कि जल्द ही KCR की एक अजीम अवामी जलसा मुन्नुगुड़ा में और देवरकोंडा के दरमियान मुनक़्क़द किया जाएगा। ఇవాళ గెలిచి వచ్చిన గౌరవ సర్పంచులకు, గెలిచి వచ్చిన ఉప సర్పంచులకు, వార్డు సభ్యులకు
వాళ్ళని గెలిపించిన మా అన్నదమ్ములకు అట్లాగే ఆడబిడ్డలకు పేరు పేరున అందరికీ శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. శిరస్సు వంచి నమస్కారం ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఈ గెలుపు ఖచ్చితంగా మీది మాత్రమే, మీరు మాత్రమే కొట్లాడి గెలిచినారు. కేసీఆర్ గారి స్ఫూర్తితో ఎవరు సహకరించినా సహకరించకపోయినా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అందించిన పోరాట స్ఫూర్తితో మేము కొట్లాడతామని చెప్పి అధికార పార్టీ ఆగడాలను, అధికార పార్టీ అరాచకాలను అన్నిటిని ఎదుర్కొని, వాళ్ళ గూండాగిరిని, పోలీసు పవర్ను అన్నిటిని ఎదుర్కొని మీరు అద్భుతంగా వీరోచితంగా పోరాటం చేసినందుకు గట్టిగా చప్పట్లతో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మొత్తం నల్లగొండ జిల్లా మొత్తం వినబడేటట్టు వారికి అభినందనలు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా. ఏం చేసిండ్రు 2 ఏళ్ళు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? కేవలం టైం పాస్, కాలక్షేపం కార్యక్రమాలు తప్ప ఏమీ లేదు. రోజుకొక లీక్ ఇస్తారు. ఇగో ఈ కేసు, ఆ కేసు, ఆ కేసు, ఈ కేసు. 2 ఏళ్లుగా కేసుల చుట్టూనే నడుపుతున్నాడు ప్రభుత్వాన్ని తప్ప ప్రజలకు పనికొచ్చే ఒక్క కార్యక్రమం కూడా లేదు. పోనీ ఆ కేసులన్నా ధైర్యంగా పెడతాడా మొగోడిలాగా అంటే అది కూడా చేత కాదు. రోజుకొక లీక్. ఇగో ఈ కేసు ఇస్తారంట, ట్యాపింగ్ అంట, నోటీస్ అంట. రారాదు కెమెరా ముంగటికి ముఖ్యమంత్రి దమ్ముంటే మొగాడి అయితే రా, వచ్చి చెప్పు ఇగో ఈ కేసులో కేసు పెడుతున్నా అని చెప్పు. రోజు చూడండి శిఖండి రాజకీయాలు తప్ప మగాడిలాగా మగతనంత రాజకీయాలు చేసే దమ్ము మాత్రం లేదు. రా, ముందుకు రా, కెమెరాల ముంగటికి రా. చిట్ చాట్ల వెనకాల దాక్కునుడు ఎందుకు? ముఖం ముంగ పెట్టుకొని రా, ముంగటి కెమెరా ముంగటికి వచ్చి ఇగో ఈ కేసులో నేను కేసు పెడుతున్నా, నేనే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పినా, నోటీస్ ఇస్తున్నా, నేనే అవసరమైతే జైల్లో పెడతా అని హోంమంత్రి కూడా నువ్వే కదా, వచ్చి చెప్పు ముంగటికి వచ్చి. అది చేత కాదు. వెనకాల కూర్చొని చిట్ చాట్ల పేరిట, కాలక్షేపం కబుర్ల పేరిట ఇలా टाइम पास చేస్తా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి. तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम जारी जन्म बांटा प्रोग्राम के दौरान सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जोगुलामा गढ़वाल जिले में मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में वाजे किया कि बीआरएस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो 2029 के असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात हों या ना हो, वो हमेशा अवाम के दरमियान रहेंगी और अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। कविता ने नेटमपाड़ू और आरडीएस मंसूबों को मुकम्मल तौर पर फाल करने, तमला प्रोजेक्ट, नहरों की तोसी और अपाची स्कीमों की तकमील पर जोर दिया और एथेनॉल फैक्ट्रियों, कार्डन सीट माफिया और दलाली निज़ाम पर सख्त तशवीश जाहिर की। हैंडलूम कारीगरों, किसानों, मजदूरों और 3,500 अफराद के पट्टों के मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जागृति हर महाज पर जद्दोजहद करेगी। अक़लियती तबक़ात खुसूसन मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी दी जाएगी और नए चेहरों को आगे आने का मौका देना ही हकीकी तरक्की की ज़मानत है, जबकि जन्म बांटा प्रोग्राम के जरिए अवामी आवाज़ को ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाया जाता रहेगा। यदाद्री भुवनगिर के नारापल्ली के करीब एक मोटरसाइकिल के फिसलने से एक वालिद और उसकी बेटी मामूली जख्मी हो गए जब वो बाइक पर सवार होकर एमएलसी कलवा कुंटला कविता को सलाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो बीबी नगर के AIIMS में जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही थी। हादसा देखते ही कविता ने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी रोकी और खुद जाए हादसे पर पहुंची और जख्मी वालिद और बेटी की हालत देखी। इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जख्मियों को अपने काफिले की गाड़ी के जरिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया, जबकि मौके पर मौजूद जागृति के रहनुमाओं ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। गाड़ी स्टार्ट करो अना सो आ मोटन ए बिट्टू बिट्टू ओडे दिगे चलो पिकअप చేసి పికప్ చేయండి బండ్ల కూర్చో నువ్వు బండ్ల मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में 814 उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के मौके पर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी ट्रेनों की मंजूरी दी गई। इस मौके पर AIMIM के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर खुसूसी ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया और उर्स में शिरकत के लिए रवाना होने वाले ज़ायरीन से मुलाकात की।
ट्रेन की रवानगी के वक्त AIMIM के प्राइमरी यूनिट के अरकान, पार्टी कारकुनान और बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे, जिन्होंने इस सहूलत पर मसरत का इजहार किया। ज़ायरीन ने कहा कि खुसूसी ट्रेनों की फराहमी से सफ़र में आसानी होगी और उर्से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत मज़ीद सहल हो जाएगी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो हाज़रीन उर्स जो 814वां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को जा रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए जो बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो स्पेशल ट्रेन हमने करवाई थी, उसको आज फ्लैग ऑफ हमने नामपल्ली हल्के से किया। बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेड पर यहाँ से एक नामपल्ली से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, एक काचीगुड़े से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, और एक ट्रेन नांदेड़ से एक मंजूरी ली गई, और एक वाया और एक ट्रेन हमने मंजूरी ली है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी हर वक्त ऐसी नुमाइंदगी करती है जिससे अवाम को और ख़ास तौर से जो उर्स को जाने वाले जितने भी हाज़रीन हैं उनके सफ़र में आसानी हो सके, उनको सहूलत मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज जो स्पेशल ट्रेन, स्पेशल कोचेस के साथ, एक्स्ट्रा स्लीपर कोचेस के साथ आज यहाँ से हाज़रीन उर्स को हैदराबाद से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लेके जाएगी। हम दुआ ये करते हैं अल्लाह इस सफ़र को आसान करे, और हम आप तमाम से भी दुआ गो है कि आप तमाम लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों के लिए और उनकी कामयाबी के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हैदराबाद में सर्दी की शदीद लहर मुसलसल जारी है और फिलहाल इसमें कमी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। आज 23 दिसंबर की सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत गैर मामूली तौर पर कम रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। शहर में सबसे कम दर्जे हरारत यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजेंद्र नगर में 10 डिग्री और मौलाली में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IT हब गच्चीबौली में कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री रहा, जबकि श्रीरामपल्ली, अलवाल टेलीकॉम कॉलोनी, कुतुबुल्लापुर, शाहपुर नगर जैसे इलाकों में दर्जे हरारत 11 से 12 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गजुला रामाराम, अम्बेडकर नगर, वेस्ट मारेटपल्ली, किशनबाग, शेखपेट, GD मेटला और राजीव नगर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रही, जहां कम से कम दर्जे हरारत 12 से 12.5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों तक सर्दी की यही कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है। शदीद सर्दी के सबब मौसमी फ्लू और नज़ला जुकाम के मामलात में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, गर्म लिबास पहनने, ठंडी हवा से बचने और बीमार अफराद से फासला रखने का मशवरा दिया। तेलंगाना में ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इश्तेहारात और प्रमोशन केस की तफ्तीश जारी है, जिसमें अदाकारा मंजू लक्ष्मी 2 बार CID के सामने पेश हुई और तफ्तीशी अफसरान से इनसे मुतअद्दिद सवालात पूछे गए, जिसमें बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन, इनके आयद किए गए मुआवजे और ऐप ऑर्गेनाइजर के साथ मुआहदात शामिल हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मी पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हो चुकी हैं और इसी केस में दीगर फिल्म स्टार्स जैसे प्रकाश राज, राणा डगुपति, विजय देवराकोंडा और शोबी शख्सियात निधि अग्रवाल, अमृत चौधरी वगैरह भी तहकीकात में तफ्तीश की जा चुकी है। अफसरान इनसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने बेटिंग ऐप की प्रमोशन क्यों की और इन्हें इसके बदले कितनी रकम मौसूल हुई। इस केस में मजीद कानूनी कार्रवाई के इम्कानात ज़ेरे गौर हैं, जबकि पुलिस और तहकीकाती इदारे गैर कानूनी बेटिंग नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त इक़दामात जारी रखे हुए हैं। हैड्रा ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नेक नामपुरा में वाक़ई कीमती सरकारी अराजियात को नाजायज़ कब्जों से पाक कर दिया है। कहा गया है कि नेक नामपुरा में 23 एकड़ 16 कुंटे सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया गया था। इस अराजी की कीमत 2500 करोड़ रुपये बताई गई है।
इस सिलसिले में मिलने वाली शिकायत का जायजा लेने के बाद हाइड्रा ने तफसीली जायजा लिया और हकायक से वाकफियत हासिल की। तफसीलात जानने के बाद हाइड्रा ने इस कीमती सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा को बर्खास्त कर दिया है और इसके अतराफ फेंसिंग कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ सरकारी अराजी का बोर्ड भी लगाया गया है। हुकाम ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है क्योंकि इस अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार किए गए थे और लैंड रिकॉर्ड्स में उलट फेरी भी की गई थी। हाइड्रा की जानिब से इस अराजी पर नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अतराफ फेंसिंग लगा दी गई है और एक बोर्ड भी आवेजा कर दिया गया है। प्रगति नगर, निजामपेट और कुकटपल्ली के रिहायशियों के लिए तवील अरसे से सैर व तफरीह वाली तकरीबन 169 एकड़ पर फैली अंबर चरू झील की सफाई के लिए हाइड्रा ने मुहिम का आगाज कर दिया है। मुकामी लोगों ने शिकायत की थी कि झील के किनारे वाक़ सड़क पर कायम मुर्गी गोश्त और मछली फरोख्त करने वाले दुकानदार जानवरों के फजूला को झील में फेंक रहे हैं, जिससे पानी आलूदा और बदबू पैदा हो रही थी। इसकी बुनियाद पर हाइड्रा ने झील के किनारे से जानवरों के फजूला और बकायात हटा दी हैं। अब तक तकरीबन 30 ट्रकों के फजूले को साफ किया जा चुका है और मजीद 30 ट्रकों के फजूले को हटाने का तखमीना है। मुस्तकबिल में दोबारा फजूला डालने से बचाव के लिए झील के किनारे बाड़ लगाने और मुकामी लोगों की शमूलियत से गोश्त फरोश दुकानों को करीब ही से किसी मुतबादिल जगह मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है ताकि झील की खूबसूरती और माहौलियात को महफूज बनाया जा सके। हैदराबाद के बालापुर इलाके में पुलिस ने चबूतरा मिशन जारी रखते हुए रात देर गए तक कार्रवाई की, जिसका मकसद गैर मजा सरगर्मियों और बिला वजह घूमने वाले अफराद पर नजर रखना था। पुलिस ने चबूतरों पर बैठने वालों, गैर जरूरी गाड़ियों पर घूमने वाले अफराद और दुकानें रात के औकात में खुली रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इंस्पेक्टर बालानगर ने बताया कि ये कार्रवाई इलाके में अमन व अमान कायम रखने और जुराइम की रोकथाम के लिए किए गए हैं और आवाम से भी ताउन की अपील की गई है। पुलिस ने हर गली और हर सड़क पर बाइक पेट्रोलिंग के जरिए मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी और निफ्स शब से सुबह की अव्वलिन सातों तक ये मिशन जारी रहा ताकि शहरियों की हिफाजत और कानून की बलादस्ती यकीनी बनाई जा सके। आरमूर से मौसला इत्तलात के मुताबिक निफ्स शब के बाद एक शदीद सड़क हादसा पेश आया, जिसमें संध्या रानी और एक दिगर शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। संध्या रानी आरमूर के एक फंक्शन हॉल में कैटरिंग के काम से वापस आ रही थी जब साई प्रसाद नामी नौजवान अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी के साथ एक ऑटो रिक्शा से जा टकराया। इस तसादुम के नतीजे में दोनों अफराद की मौत मौके पर ही वाक़ हो गई, जबकि दिगर जख्मियों को फौरी तौर पर निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। आरमूर SHO ने बताया कि हादसे की वजूहात का तयन करने तहकीकात जारी हैं और आवाम से अपील की गई है कि सड़कों पर एहतियात से ड्राइविंग करें ताकि इस तरह के अलमनाक वाक़यात से बचा जा सके। సిటీ గార్డెన్ నందు క్యాటరింగ్ పనిచేస్తున్న 6 మహిళలు ఆటోలో నిజామాబాద్కు వెళుతుండగా నేషనల్ హైవే 63 వద్ద అంకాపూర్ బైపాస్ దగ్గరికి రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డ్రైవర్ సాయి ప్రసాద్ ఆటోని హిట్ చేయటం వల్ల అక్కడికక్కడే మోటార్ సైకిల్ రైడర్ సాయి ప్రసాద్ ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ వనం సంధ్యారాణి చనిపోయారు. ఆటోలో ఉన్న మరొక మహిళ మరాఠీ హారికకు కుడికాలకు గాయమైనది. ఇట్టి విషయంపైన సంధ్యారాణి పుత్రాలు తండ్రి సాయిలు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
संगारेड्डी जिले में आज सुबह NH65 पर कोहेर के करीब निजी ट्रैवल बस रास्ते से फिसलकर सड़क के किनारे गिर गई जब बस हैदराबाद की तरफ जा रही थी और ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। हादसे में बस में सवार 36 मुसाफिरों में से 2 शदीद जख्मी हुए जबकि दीगर मुसाफिरों की जान महफूज रही। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पहुंचकर मुसाफिरों को बस से निकालने में मदद की। जख्मियों को फौरी तौर पर जहीराबाद सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला के मुताबिक यह हादसा डॉल्फिन ट्रैवल्स की बस का था जो महाराष्ट्र से हैदराबाद जा रही थी और तेज रफ्तारी के बायस ये पलट गई। बिस्मिल्ला कॉलोनी में वाक़ मस्जिद मदरसा खानिकाह शमसी में मुनक़दा 2 रोज़ा उर्स मुबारक के मौके पर संदल मुबारक का बाकायदा आगाज़ सदर मस्जिद व मदरसा शमशिया मोहम्मद इस्माइल शमसी खादरी ने किया, जिसे उर्स का एक अहम और रूहानी मरहला करार दिया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह अजीजुल्लाह खादरी, मोतमद मोहम्मद इमरान खादरी और मौलाना मीर इद्रिस अली एजाज समेत फुरखा मुशाइख और आशिकान औलिया की बड़ी तादाद मौजूद रही, जबकि बादअज़ां दुरूद सलाम, जिक्र व अस्कार, महफिल नात व समा और जल्द से फैज़ान औलिया का इनेकाद अमल में आया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। JHMC वार्ड्स की अजसर-9 हदबंदी यानी डिलिमिटेशन पर हाई कोर्ट की मदाखलत से इनकार। डिवीजन की तादाद 300 करने के फैसले को अदालत की मंजूरी। शहर में रियल एस्टेट तिजारत में तेजी। माह नवंबर के दौरान मकानात के रजिस्ट्रेशन में हुआ 25% इजाफा। 4,900 करोड़ मालियती जायदादों का हुआ रजिस्ट्रेशन। BRS में वापसी का सवाल ही नहीं, MLC कविता ने किया वाजे। 2029 के असेंबली इंतखाबात में जरूर मुकाबला करने का ऐलान, कहा जद्दोजहद रहेगी जारी। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी। अजमेर शरीफ उर्स के लिए हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनें। MLA माजिद हुसैन ने उर्स से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी ट्रेनें को दिखाई झंडी, किया रवाना। बालापुर में पुलिस का चबूतरा मिशन तेज, रात भर छापे और सख्त निगरानी। गैर मजाज सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। अमन व अमान के लिए बाइक पेट्रोलिंग, गली गली पुलिस की मौजूदगी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।